of this rope is m, total mass is m, and total length is L. Total length is L. So mass per unit length is m by L. This is mass per unit length, m by L. This is called lambda, mass per unit length, or linear mass density. This is also called. So if lambda is m by L, that means this rope contains a mass lambda per each length. So let us now draw free body diagram of these two parts. यहाँ पे एक part को draw करो. Suppose this is this part. So here are the forces acting. F1, as can be seen, and here is the tension T. This is this section, end of this section. So we are drawing free body diagram of this part. And as a result, suppose let us assume F2 is greater than F1. Let us assume, बाद में देखा जाएगा, F2 is greater than F1. Let. So if F2 is greater, so the acceleration of this thread of mass m will be in this direction towards the greater force. Okay. So acceleration in this direction towards this force. F2 तो अगर F1 कम पड़ जाएगा, ये ज्यादा होगा, तो T भी ज्यादा होगा, because F2 अगर ज्यादा है then T थोड़ा सा कम होगा और कम होगा और कम होगा, करते करते the last force would be F1. So acceleration सामने, T greater force minus smaller force equals to ma. What is the mass of this part? इसका mass कितना होगा? Mass of this part of the rope, that would be mass per one length. How much? Lambda. Mass per unit length. So what would be the mass of this part? ये part का mass कितना हो जाएगा? Lambda into L minus x. Why? Because if this is L, this is x, so the remaining part would be L minus x. Mass of one length is lambda. Mass of L minus x would be lambda times L minus x. This is mass into the acceleration. We did what? We have drawn separately this part of the rope, and we are applying free body diagram. Greater force minus smaller force equals to ma. Greater force is the force that acts along the direction of the acceleration. मैं ऐसे बोला था, just to remember that. So as we have assumed from the beginning that F2 is greater than F1, so इधर का सारे forces greater होंगे और ये less. So T is greater, F is less. Acceleration found. Greater force minus smaller force equal to ma. And what would be the mass of this part of the rope that we have chosen? This part up to this section. If this is a length x, this would be L minus x. So one length lambda, L minus x length, lambda times L minus x. Clear? First part. Second part, this part. Second part means the other side of the section. So let us consider this. यहाँ पे draw कर रहा हूँ. छोटा सा है. कितना है? इसका length कितना? X. Length is. Now F2 force is acting in this direction. Free body diagram draw कर रहा हूँ उसका. F2. There is F2 force. और इधर कौन सा force है? Tension T. This point में force tension T होगा. Tension would be T. That means when you are considering this part, tension T में क्या बोला था? Away from the body. तो ये part के लिए tension T away from it. For the other part, it would be away from it. Actually, tension is action reaction pair. एक part के ऊपर जिधर tension होगा away from it, दूसरा part के ऊपर वही tension होगा away from it, opposite. So this is tension. Now इसके लिए अभी equation बनाते कैसे? चलो इसका भी acceleration तो सामने हो रहा था in this direction. So ये इसका free body diagram है. From this we can understand acceleration का direction में कौन सा force है? F2. Greater force minus smaller force. उल्टा direction में कौन है? T. Equals to इसका ma. इसका m कितना होगा? Mass per one length lambda. तो इसका length है कितना? x. तो x length का mass x lambda. Mass तो हो गया m into a. Equation number 2. हो गया दो equations. Now we will be adding these two equations. अगर दोनों का ऐड कर देंगे तो देखो ये टी कैंसिल, टी एंड टी कैंसिल, तो क्या मिल रहा है? देखो F2 minus F1
इक्वल्स टू, इधर क्या मिल रहा है देखो, लैम्डा वी कैन टेक कॉमन, ए वी कैन टेक कॉमन, लैम्डा कॉमन, ए कॉमन, अगर लैम्डा इंटू ए कॉमन ले लिया, वी आर एडिंग दिस टू, लैम्डा और ए कॉमन ले लिया, अरे ये तो फिर एल माइनस एक्स ऊपर बचा और इधर कौन बचा, एक्स, ओ माय गॉड ये तो गया, दैट मीन्स it becomes very easy to make it a single formula, and we will not be doing this in exam hall, we will be just doing the last line and be happy with it. चलो चंगा हो जाओ, acceleration A equals to how much is it, f2 minus f1 divided by, लिख रहा हूं मैं f2 minus f1 divided by, नीचे क्या आ गया लैम्डा, और कौन बचा l, लैम्डा इंटू l माने कौन है भाई साहब, one length lambda mass, तो l length में l into lambda mass, that means total mass m, lambda into l means lambda into l, that means m. So this is the acceleration. हम लोगों को acceleration नहीं चाहिए, ये last line नहीं है, तो we want t, t का वैल्यू चाहिए, तो बहुत ही इजी है, वी आर जस्ट वन लाइन अवे फ्रॉम दैट। बोलो दोनों में से कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है टू फाइंड टी, व्हिच इक्वेशन इज इजियर, वन ना टू, टू फाइंड टी, हम लोग को टी चाहिए, टी, टू इक्वेशन अपीयर्स, टू, सो फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट टी इक्वल्स टू, टी कितना मिल रहा है, टी इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन टू f2 minus lambda x a, lambda means m by l, ये देखो x को रहने दो, कुछ नहीं कर सकते, x ही होगा, into a acceleration, अरे acceleration तो we have just found, acceleration कितना, f2 minus f1 by m, so this mm get cancelled and we get this thing, ये ब्रैकेट में है, we get this thing, how much, t equals to, it is f2l minus f2x minus minus plus f1 into x divided by total length l, नीचे l है, l को LCM किए, दिस इज द आंसर, t इक्वल्स टू, ये बोल रहा था लास्ट लाइन डायरेक्ट करेंगे, माने क्या है और हाउ टू डू दिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट पेज में प्रैक्टिस करते हैं, आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, एटलीस्ट इफ यू आर राइटिंग दिस, पॉज कर करके इसको राइट करो, तो दैट विल बी आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू लर्न दिस, नॉट की सी दिस। चलो नेक्स्ट पेज में लेट मी शो यू व्हाट वी गॉट, एक्चुअली वी गॉट दिस, if a force F1 is applied here, उधर F1 था कि F2 था, देखो लास्ट पेज चलो रे, F2 था, so if a force F2 is applied on a rope and a force F1 is applied on the other side, then if we have to find tension at any point, suppose at this section, ये सेक्शन में, सेक्शन का नाम दे देता हूं ऐसे, say x dash, this is a section, so if we have to find force or tension at this section, how can we find that, direct formula, वो ये सब करने का जरूरत नहीं है, just focus on the last line that we have opted, तो direct formula क्या बैठाएंगे, मैं कैसे करना है वो बता दे रहा हूं, how it helps you to remember, क्या है कि remember this part was given, this length from the end was given x, so what is the remaining length of the wire or rope, that is l minus x, क्योंकि इसका total length कितना था, total length was l, ठीक, ये थोड़ा डर्टी दिख रहा है, मैं इसको फ्रेश करके ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, so it would be like this, if one side of the rope is at a distance x, then the other side would be at a distance, वही हो गया घूम फिर के, जैसा था वैसा ही बढ़ाया गया, लेकिन एक लाभ हुआ, दो बार ड्रॉ किए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए
कि one side is L minus x, the other side is x. So tension at this section T would be given by, color को देखो मजे लो. How? Because color this time will help you to remember. कैसे देखो, मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ. We actually got any one side force into opposite side का distance. F2 का distance कितना था from this section? F2 का distance कितना था? x. We will not take that. तो क्या करेंगे? उधर का फोर्स लो और इधर का डिस्टेंस लो, इस साइड का सेक्शन का ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस, एक साइड का फोर्स ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस, फोर्स F2 लिख रहा हूं, डिस्टेंस इस साइड का कितना L minus x प्लस, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, खुद ही से सोच लो। अब तो इस साइड का फोर्स F1 इनटू उस साइड का डिस्टेंस लेंगे, F1 का डिस्टेंस नहीं, उस साइड का डिस्टेंस, द अदर साइड इज एट अ डिस्टेंस x। हो गया टोटल फोर्स ऊपर में, एक साइड का फोर्स ऑपोजिट साइड डिस्टेंस, दिस साइड का फोर्स ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L। खत्म है, खत्म, दिस मच ओनली, टोटल लेंथ L। दिस इज आंसर। देखता हूं चेक करके, यही आया क्या? F1x, हाँ यही आया, इस साइड का फोर्स F1 और उस साइड का डिस्टेंस x, ये देखो आया F1x प्लस, और कौन आया F2 इंटू L माइनस एक्स, हाँ इस साइड का फोर्स F2 और L माइनस एक्स इस साइड का लेंथ था, सो F2 इंटू L माइनस एक्स, F1 इंटू x, F2 इंटू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये दोनों का ऐड करने से क्या आ रहा है, टोटल लेंथ L नीचे, हाँ आया है, यस दैट इज द फॉर्मूला। सो we remember like this, ये annotation करके रखो, नहीं तो समझ लो इसको, और if you have understood or think you have understood, शाम को बना के देखते हैं। चलो, this is a rope, this is a rope of length 3 meter, तो इसका टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर। now let us take a section here, this is a section, सेक्शन का नाम चलो वही xx दे देते हैं। okay. If we apply a force on this side, say 32 Newton, and if we apply a force on this side, say 20 Newton, if one end of the rope is at a distance of 1 meter from the rope, then the other side of the rope will be at a distance of, obviously total length 3 मीटर, तो इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि उस साइड 1 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द टेंशन एट दिस सेक्शन xx dash? Who says the answer first? I'm waiting for you. T equals to इस साइड का फोर्स 32 into opposite distance, इस साइड का डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं 32 into 2 प्लस इस साइड का फोर्स लेंगे इस बार 20 into उस साइड का डिस्टेंस, ये कितना हो गया 1, so 20 into 1 हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज 3। अरे इतना एक लाइन में ऐसे, यस, तो ये 64 प्लस 20 84 by 3, तो 3 2s are, yes 3 8s are, 28 न्यूटन इज द आंसर। सम खत्म। अरे ये तो छोड़ो, ये तो मैं इसी वर्ग का सम किया, इसको बोलो 99% स्टूडेंट ना जिसका कंसेप्ट नहीं है विल आंसर दिस रॉन्गली। इस साइड में टेंशन टी, इस साइड में भी टेंशन टी दे रहा हूं, तो मिडिल सेक्शन में मिडिल पॉइंट माने L/2 और ये भी L/2, ऐसा जो सेक्शन है यहां पे टेंशन कितना होगा T? आंसर बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ अ रोप? ये कौन है, ये रोप है, ऑफ अ रोप, उसका मिडिल पॉइंट में टेंशन कितना होगा इफ बोथ द एंड्स आर बीइंग स्ट्रेच्ड विथ अ टेंशन T? बोलो कितना होगा? सोच लो।
am I hearing T? That is the right answer. Not 0. 0 नहीं होगा भाई साहब. Because if I am pulling this pen, suppose कौन सा ये light color का ये ले लेता हूँ. If I am pulling this pen from both sides with equal force T, या तो F, जो भी फोर्स दे रहा हूं मैं, मान लो दोनों साइड से T फोर्स से टान रहा हूं, दोनों साइड से, तो क्या इसके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा? अगर 0 होता तो ये ढक्कन खुला कैसे फिर? Because to open this cap from the pen, you require some force to be applied on this. तो अगर मैं दोनों साइड से TT दे रहा हूं तो ये खुल कैसे गया? That means the net force is not 0. Otherwise, best can be understood. एक फ्रेंड को बोलो ये हाथ को टानने के लिए विद अ फोर्स T, और दूसरा फ्रेंड को ये हाथ टानने के लिए विद अ फोर्स T. और देखो तुम्हारा बॉडी का ऊपर 0 फोर्स नहीं होगा, बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा. हाउ मच इज दैट? दैट रिमेन्स T. व्हाई? यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे T को तो फिर से मैं क्वेश्चन मार्क दिया, तो एक काम करता हूं, ये T को ना ऐसे कर देता हूं कि T नॉट कर देता हूं, इसको भी T नॉट कर देता हूं. ठीक है, तो मिडिल पॉइंट में टेंशन कितना होगा? ओके, टेंशन इक्वल्स टू, तो इस साइड का फोर्स इनटू उस साइड का डिस्टेंस. ओ भाई कहां जा रहा तू? इस साइड का फोर्स इनटू इस साइड का डिस्टेंस कितना है? T नॉट L/2. उस साइड का फोर्स इनटू इस साइड का डिस्टेंस कितना है? T नॉट L/2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L. भाई साहब T नॉट L/2 इनटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय L. ये 2 गया, ये L गया, बचा कौन? T नॉट. Next question is, if we want to find this force at a point which is not exactly midpoint, rather 1/4 of that, इसका 1/4 डिस्टेंस में मापने जाएंगे. ये सेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब ये हो जाएगा L/4, और उस साइड में हो जाएगी 3L/4. अब बताओ ये सेक्शन में टेंशन कितना होगा? ये सेक्शन मान लो इसको T डैश बोल रहा हूं, कितना हो जाएगा? एक साइड का टेंशन T नॉट इंटू L/4, उस साइड का टेंशन T नॉट इंटू L/4 नहीं होगा, नहीं होगा, गलत लिख दिया. T नॉट इंटू 3L/4. इस साइड का फोर्स उस साइड का लेंथ 3L/4 प्लस, अब उस साइड का फोर्स T नॉट, इस साइड का लेंथ कितना? L/4 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. हो गया ऊपर में डिवाइडेड बाय, हां हाउ मच? यस, because T naught can be taken common, L/4 can be taken common, then 3 plus 1 4. मतलब T naught into L divided by L. The answer is again T naught. तो कहीं पे भी सेक्शन ले लो, आंसर T naught ही आने वाला है and not 0. But a uniform mass is string. Yes, if nothing is given, we have to assume that the string is of uniform mass. Okay, string is of uniform mass. You have to assume that. If nothing is given, that is the thing. First part, huh? A topic term now. Force on a string. এটা লিখা দাও. বা force at a section of a string. এটা লিখা দাও. আমি ছোট করে লিখে দিচ্ছি না. ঠিক বলেছো, এরকম টপিক দিয়ে দিয়ে মনে রাখো. Force at a section of a string. This is the topic. You can remember it like this. Force of on one side into opposite length. Force on one side opposite length, force on the other side opposite length, divided by total length. That is the formula, and this is the application. चलो next part एक तो सिखा दिया, but what would be this one? Last इसको करो, we will leave this topic then, assuming that you have understood this. This is a rope. This is tied to a rigid support wall. Now, if a force of 30 Newton is applied on one end, and if this total length of this thread,
rope is 2 meter, then what would be the force at a distance 1.5 meter from the wall? This is 1.5 meter from the wall. What would be the tension acting at this point of the rope, at this section? फटाफट, टाइम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आज का क्लास तो धमाकेदार। फटाफट बोलो बोलो, फटाफट आंसर बताओ। 22.5. हाँ 22.5। Let us see that. हाँ how much? बोलो 30. Okay, at this section you are saying 30. Okay, let me see that. So the idea is, call आ गया भाई। The idea is T equals to, देखो, this force gradually decreases and becomes zero at the rigid support. याद रखना, this tension becomes zero at rigid support. यहां पे टेंशन जीरो हो जाएगी, तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा? इस साइड का फोर्स जीरो इंटू उस साइड का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.5। चलो 0 इंटू 0.5 प्लस, अब उस साइड का फोर्स लो 30 न्यूटन और इस साइड का डिस्टेंस ले लो 1.5 divided by total length 2 meter. So it would be 45 by 2, 22.5 Newton. Keep in mind this thing, that if you have tied a rope to a rigid support, कैसे? Horizontally. हाँ, तुम लोग पूछ रहे थे ना, what topic is this? This is the tension on at a section, tension at a section of horizontal rope. Rope has to be horizontal. तो उसका एक स्पेशल केस क्या हुआ? If the horizontal rope is tied to a wall, then this force gradually decreases and there will be no effect at this point. That means it will be zero here. Okay? So the answer is this, and there comes vertical rope. What would be the force on a vertical rope? That would be like this. इसका भी आइडिया लिख लो। सपोज ये पूरा रोप का लेंथ है L, तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, साइड। पिक्चर को ड्रॉ करो and write that capital M is the total mass of the rope. So lambda equals to M by L. Capital M is the total mass of the rope. Total mass of the rope. So lambda, that means mass per unit length. Lambda is what? Mass per unit length. Lambda, that is given by total mass by total length. That is it. Okay. Now the idea is for vertical rope, T equals to, tension equals to weight below the point. बस यही है, नो फॉर्मूला नथिंग, ओनली दिस कंसेप्ट। जो पॉइंट में तुम्हें टेंशन चाहिए, या तो जो सेक्शन में तुम्हें टेंशन चाहिए, उसका नीचे कितना वेट है, वेट, WT मींस वेट,
देख लेता हूं चेक करके। इफ वी फाइंड अ पॉइंट हियर, लेट इट बी P1, यहां पे है पॉइंट, तो ये सेक्शन में या तो ये पॉइंट में टेंशन एट P1, मैं ऐसे करके लिखता हूं यहां पे, टेंशन एट P1 इक्वल्स टू, उसका नीचे लोड कितना है, व्हाट इज द लोड बिलो दैट पॉइंट, ये लिखा हुआ है देखो बिलो, ये पॉइंट का नीचे कितना लोड है भाई, स्मॉल एम मास का वेट, सो इट वुड बी mg ओनली। नाउ व्हाट वुड बी द टेंशन एट P2 where P2 is, P2 कहां पे है, टेंशन अलग हो जाएगा, P2 is at a height L/2 from P1, T at P2 would be how much? It would be the total load below this, not above this, below this. तो इसका नीचे तो एक m है, तो उसका वेट होगा mg, प्लस ये पार्ट का वेट ऑफ दिस पार्ट, ये तो भारी है ना, मास है m, टोटल मास m, तो as the length is half of the total length, so obviously its mass would be half of the total mass of the rod or rope, टोटल मास कितना m, तो उसका हाफ कितना m/2 हो गया m, उसका वेट कितना, वेट चाहिए, वेट नॉट मास, सो वेट वुड बी mg, so m/2 into g, so this is the answer. Let us understand horizontal motion of connected blocks. Horizontal blocks, कैसा blocks, connected by strings. Horizontal blocks का सम ऐसा रहता है, there is a block like this connected by a string, another block like this connected by a string, another block like this. अब मान लो कि ये all these blocks are placed on, टेक्नोलॉजी का थोड़ा हेल्प ले लेता हूं तो थोड़ा पतला हो जाए, हाँ, all these strings are placed on, suppose a surface like this, इसके ऊपर रखा हुआ, and we are pulling this in this direction. देखो इसका जो नॉर्मल आइडिया है, that I have shown you, नॉर्मल बेसिक आइडिया जो बोर्ड लेवल का है वो मैं दिखा दिया तुम लोगों को, हाउ टू फाइंड दैट बाय ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। अब दिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम ना करके डायरेक्ट बिना पेन कॉपी का आंसर करेंगे, बिना पेन कॉपी, लेकिन पहले एक बार सीख लेना। मान लो इसका मास है से 2 kg, इसका मास है से 3 kg, and this has a mass say 5 kg. And now if we are applying say a force of 20 Newton, then what will happen? Step 1 क्या करना, सुनो, step 1 ऐसे करके लिख के रखो, step 1 find common acceleration of the system। कैसे common acceleration of the system, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स माने क्या, यहाँ पे टेंशन T होगा थ्रेड 1, यहाँ पे टेंशन T2 होगा थ्रेड 2, ये सब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्यों, व्हाई, because tension is an internal action and reaction pair, they are not external force। समझ, मैं खुद ही को रस्सी बांध के एक हाथ से टान रहा हूं खुद ही को, तो कैन आई मेक माई सेल्फ मूव, नो, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दिस टेंशन इज इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बट ये फॉर्मूला में F क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि ये है 20 न्यूटन, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास इज मूविंग, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, स्टेप 1। तो चलो यहां पे करके देखते हैं, यहां पे क्या है, फॉर्मूला आइडिया यहां पे लिखता हूं और यहां पे क्या है, प्रैक्टिस करता हूं, साइड बाय साइड एक साथ सीखेंगे। तो फॉर्मूला क्या करना है, स्टेप 1 में टोटल फोर्स एक्सटर्नल बाय टोटल मास, तो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स है 20 न्यूटन, टोटल मास 3 + 2 5 यस 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। वी गॉट इट, कॉमन एक्सेलरेशन। स्टेप 2, आंसर आ गया, ऐसे कैसे आंसर कैसे आ गया ना, टेंशन चाहिए तो टेंशन दैट वुड बी गिवन बाय, अब एक फनी लैंग्वेज बोल रहा हूं, ओनली फॉर
द केस दैट यू रिमेंबर दिस एंड अंडरस्टैंड आल्सो। बाकी एग्जाम में ये लिख के मत आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ठीक करना पड़ता है। तो वो है मास। देखो टेंशन इज अ फोर्स, कॉमन सेंस समझ लो, सीएस थ्योरी, कॉमन सेंस थ्योरी। क्या टेंशन इज अ फोर्स, तो फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन होगा ही होगा, कोई भी टेंशन हो जाए। मास, किसका मास? एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, एसीएम निकाल के बैठे हैं एक्सीलरेशन, तो मास से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा मास? वही फनी लैंग्वेज है, मास ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मास ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है? मतलब जो टेंशन का जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनटू ये कॉमन एक्सीलरेशन, एसीएम। ये मास ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो सोच के देखो तो एक बार, प्रैक्टिकली फील करो। फिजिक्स है ना भाई, थोड़ा फील करना पड़ता है। फिजिक्स में क्या है, इफ यू आर पुलिंग दिस बाय विद द हेल्प ऑफ 20 न्यूटन फोर्स, तो ऑब्वियसली T1 टेंशन, बाकी इसका पीछे जो है वो दोनों को T1 टेंशन टान रहा है। 20 न्यूटन किसे टान रहा है? ऑल दिस थ्री मासेस, 5 kg, 3 kg, 2 kg। ये तीनों मासेस का रिस्पांसिबिलिटी किसका ऊपर है? 20 न्यूटन। अब इसका छोटा भाई कौन है? T1। उसका अगला पार्ट T1 वो आता है, वो क्या करता है? T1 का रिस्पांसिबिलिटी है 3 kg एंड 2 kg, ये दोनों को टानने का। तो T1 के लिए मास ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वुड बी 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है। सिमिलरली सोच लो कि ये T2 टेंशन का रिस्पांसिबिलिटी क्या है? T2 टेंशन का बाद और कौन है? T2 टेंशन का पीछे और कौन सा मास है? ओनली 2 kg। So T2 का mass of responsibility is only 2 kg. T2 has to pull this 2 kg mass only. छोटा भाई है घर का, responsibility थोड़ा कम है। Maybe in this case only I am saying, दूसरा चीजें मत सोचना। Anyway, so let us find this. Let us find this. किसका चाहिए टेंशन? T1। चलो करते हैं। मैं क्या लिखूं? I know you have already done it. T1 equals to mass of responsibility of T1 is 5 into common acceleration of the total system is 2, 10 Newton. Similarly T2 mass of responsibility T2 का 2, common acceleration वो भी 2, 4 Newton। आंसर खत्म क्या? खत्म हो गया। Do we require any calculator for doing this? No. देख देख के आंसर बता देंगे, as I had promised you। देख के आंसर बताएंगे, no calculator, nothing, ना पेन ना कॉपी, फटाफट करेंगे। But let me tell you one thing, that is ये जो हम लोग किए ना, फॉर्मूला के हिसाब से, शॉर्टकट के हिसाब से हो गया, और बेसिक जो फ्री बॉडी डायग्राम करके we have already done that। Now the understanding part is this। प्लीज मेरे साथ रहो, हाँ प्लीज फोकस करो यहाँ पे। ओनली शॉर्टकट और तुक्काबाजी इज नॉट एनफ, सीखना पड़ेगा पूरा फिजिक्स को। देखो ना मैं सिखा दे रहा हूँ, कितना इजी है। देखो मेरे साथ रहो, फोकस हियर। वी हैव अप्लाइड व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द टोटल सिस्टम? 20 न्यूटन। व्हाट टेंशन इज डेवलप्ड हियर? यहाँ पे T1 बोल के जो टेंशन हुआ वो कितना हुआ? T1 हुआ भाई साहब 10 न्यूटन, यहाँ पे हो गया 10 न्यूटन। अब बताओ 20 न्यूटन से तो इसे टान रहे थे 5 kg को, उसमें से यहां पे बचा है, आप 5 kg को पार करके कितना बचा है? 10 न्यूटन। तो बाकी का 10 न्यूटन खर्चा कहां हुआ? यू अप्लाई 20, यू आर हैविंग 10 हियर, सो बाकी का 10 कहां गया? ये ले लिया। कैसे ले लिया? खा लिया क्या? यस, इट कंज्यूम्ड 10 न्यूटन। हाउ? एक्सप्लेन करो इसको। अब बताओ m मास को अगर a एक्सीलरेशन देकर मूव करवाना है, व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स डज इट नीड? m मास एक्सीलरेशन है, m है, इसका m कितना है? 5। a कितना था? कॉमन एक्सीलरेशन 2। तो इसको कितना फोर्स चाहिए टू बी मूव्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन? इट्स मास इनटू इट्स एक्सीलरेशन 10। अच्छा, तो 20 न्यूटन दिए थे ये खुद। दिस 5 kg मास रिक्वायर्स 10 न्यूटन फोर्स। तो 20 से 10 गया, बचा कितना? 10, that is appearing as T1। उसका बाद T2 कितना बचा? T2 तो भाई साहब 4, बाकी 6 कहां गया? 6 न्यूटन। 10 दिए थे यहाँ पे मिल रहा है 4, बाकी का 6। दिस कंज्यूम, that means
6 newtons force has been spent to move 3 kg mass with this acceleration 2. तो इसका ma कितना 3 into 2 6. अच्छा 10 न्यूटन, इसको मूव करने के लिए 6 न्यूटन चला गया, यहां पे कितना बचा 4 न्यूटन. अच्छा ठीक है, अब इसका क्या है, इसका मास 2 और एक्सीलरेशन 2, तो इसको कितना चाहिए 4 न्यूटन. अच्छा पूरा का पूरा फोर्स खर्चा हो गया, दैट मींस यहां पे कितना फोर्स बचा 0. दैट मींस व्हाट, these three together have consumed 20 newton force. This is the balance sheet how force is consumed by the masses. ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट, when you understand physics becomes very easy. और शॉर्टकट भी तो दिखा दिए, क्या करना है साम देख लिए. स्टेप 1 कॉमन एक्सीलरेशन, स्टेप 2 टेंशन मास ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, मतलब उसका पीछे जो है इनटू कॉमन एक्सीलरेशन. साम खत्म, बहुत समझा दिए. प्रैक्टिस करने के लिए इसको करो, प्रैक्टिस करने के लिए इसको करो. कंप्लीटली डिफरेंट सम कर रहा हूं. ट्वेंटी न्यूटन फोर्स दे दो, 2 kg मास, यहां पे ले लो 3 kg मास, यहां पे ले लो 5 kg मास. 20 न्यूटन फोर्स दे दो सामने. अब ना your task would be finding T1 and T2. बोलो बोलो बोलो, आंसर बताओ फटाफट. ये क्या, ये सब शाम तो बुक में इतना किया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम करके. अरे बुक थोड़ी जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तुम जाओगे. फटाफट करो, 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम. बोलो आंसर. T1 how much, T1 4 न्यूटन और T2 2.5 Newton. Let us check this. Let us check this. These are the बोलो 16 Newton and 10 Newton. T1 16 Newton you want to say, and T2 10. Okay. Let us check. Let us check. These are the answers received from students. 16 into 10. Another supporter came. 16 into 10. Okay. Very good. Let us see this. How? Why common acceleration step 1. Common acceleration total force ये तो रहा 20 by total mass, वही पुराना वाला 3 plus 2 5 plus 5 10. अच्छा तो common acceleration 2 का 2 ही रहा. Yes. second step है. अब जो टेंशन चाहिए वो है second step. टेंशन कितना चाहिए T1. अच्छा T1 मान लो, इसको बोलो T1. इसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका पीछे जो संख्या है उसको टानना है. दैट मींस इट हैज टू पुल व्हाटएवर मासेस आर लेफ्ट बिहाइंड इट. इसके पीछे कितने मासेस है 3 kg है, 5 kg है. दैट मींस 8 kg रिमेनिंग इसके पीछे, T1 का पीछे. तो मास ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ T1 मतलब उसका पीछे जो है टोटल कितना 8 into 2. यस 16 न्यूटन इज द आंसर. T1. T2 कितना, T2 का पीछे T2 को टानना है किसको, सिर्फ 5 kg को. तो mass of responsibility 5 into acceleration 2, that is 10 Newton. Yes, those who answered 16 and 10 are right. But those who got 4 or 2.5, उसको ना ज्यादा लाभ हुआ. Why? The student participated, made mistake, and the student will remember this mistake और कभी नहीं करेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो आंसर राइट है रॉन्ग है उससे भी इंपॉर्टेंट है whether you are trying or not. सिर्फ देख रहे हो सुन रहे हो क्या, कोई लाभ नहीं. प्रैक्टिस करो. चलो, और ऐसा भी नहीं कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन इजीली डू दिस. थोड़ा सा इन्वॉल्व करो अपने आप को. यस, सो द आंसर्स यहां पे लिख रहा हूं. T1 16 न्यूटन, T2 10 न्यूटन. राइट आंसर. सो दीज आर कनेक्टेड बॉडी सिस्टम. इसका बताओ तो. सिमिलर लास्ट एक, सिमिलर लास्ट 4m mass and m mass are placed on a smooth horizontal surface. No friction is there. Now a force F is applied on 4m mass. m माने कुछ होगा 10 5 कुछ होगा, m को m ही रखो. F force is applied on the 4m mass. ये मास का नाम मान लो A है, ये मास का नाम है B. तो A बॉडी का मास है 4m, B का m.
तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन द इंटरफेस force on the interface of the two masses. सेम एकदम सेम होगा। चलो सोचना नहीं है। स्टेप 1 क्या करना है? कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा? कॉमन एक्सीलरेशन टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना? F टोटल मास कितना? 4m + m। तो एक्सीलरेशन कॉमन कितना हो जाएगा? F/5m। हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड नंबर 2 Sir, is it F? हाउ मच? 0.8 F. 0.8 F. 0.8 F or F. Two answers are received. Okay. Let me see this. So the interesting, and I'm happy you are involving yourself, trying. See, if you apply a force F here, as I explained in the last case, some part of this force will be consumed by this 4m, that is A mass. Whatever remains afterwards will be applied to this mass m. This remaining force, this remaining force on B is the action on B. कि B भाई साहब आगे चलो हमको निकलना है। B will offer equal and opposite reaction to this 4m. Why? Because B was at rest. It had inertia of rest. It will try to remain at rest. So ये क्या करेगा कि नहीं भाई साहब मेरा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करेगा तू? तो मैं ना आपको पीछे ठेलूंगा। Why? Because this is action and B will offer equal and opposite reaction on the other side. These two forces are called normal reaction or you can say reaction. So this is the force they are asking for. The force on the interface, that is E line. That is R. तो R का फॉर्मूला वही कर दो। क्या? मास ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू A। अब ना ये तो मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया। सोचो ना, जो मैं कंज्यूम किया ऐसा करके जो समझा रहा था, यहाँ पे एक फोर्स दिए, ये कुछ खर्चा कर दिया, बाकी का फोर्स यहाँ पे ये ठेल रहा है किसको? स्मॉल m को। तो बोलो ना बाकी का ये फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फोर्स R टू मूव टोटल सारा संसार को मूव करवाना है इसको, कि ओनली द मास अपीयरिंग बिफोर इट। किसको ठेलना है इसे? देखो एक आइडिया बताओ, अगर टानना होता है ना तो पीछे का मास देखना, बिकॉज वी पुल द मासेस बिहाइंड अस। टानना है, टेंशन T अगर निकालना है तो पीछे का मासेस देखना। बट इफ यू हैव टू फाइंड रिएक्शन फोर्स तो सामने का मासेस देखो कि उसका सामने कौन कौन मास है, दैट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश। ये पुशिंग के फोर्स है ना, तो उसका सामने कितना मास है? ओनली m। तो बस आंसर क्या है? मास ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी m इनटू कॉमन एक्सीलरेशन कितना था? F/5m। mm काटो एंड बी हैप्पी विद द आंसर F/5। सो दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। हैंडराइटिंग इतना खराब क्यों हो रहा है? ये ब्रैकेट है which holds this pulley which is directly supporting these two masses 10 kg and 12 kg। फॉर्मूला लिखो फटाफट, because free body diagram we have already done। अब क्या करना है? फिर नया कुछ सीखना है क्या? नया सीखना है डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या? कॉमन एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन कैसे करना है? हेल्पिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स, मतलब टोटल फोर्स बाय टोटल मास। But total force will not be added but subtracted। ये helping force कौन है भाई साहब? Helping force is the force that is the weight of heavier mass। जिसके लिए मोशन हो रहा है, that is the helping force। वो कौन है? भारी वाला कि हल्का वाला? भाई भारी वाला creates motion, जो भारी है,
और हल्का, अगर वो ऑपोजिट साइड में लगा हुआ है हल्का वाला, तो वो तो कोशिश करेगा कि नहीं भाई जाने नहीं देंगे इसको, मैं अपना वजन से उसको रोकूंगा। दैट मींस weight of the lighter mass is opposing force। और ये कौन होगा? weight of, लिखते रहो, lighter mass, ये होगा opposing force। और कौन opposing force हो सकता है? और फ्रिक्शन अगर रहेगा तो ये भी opposing force के जैसा काम कर सकता है। और टेंशन, ये सब टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, पर टेंशन कभी नहीं होगा। टेंशन हेल्पिंग फोर्स हो सकता है ना, टेंशन ऑपोजिंग फोर्स ना। क्यों? बिकॉज दीज फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस। और मैं बार बार बोल रहा हूं क्या? बार बार ये बोल रहा हूं कि टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। वो ना, ये सब कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो पहले जो हम लोग करते थे फ्री बॉडी डायग्राम में वी यूज्ड टू ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ सेपरेट पार्ट्स ऑफ द टोटल सिस्टम। और यहां पे क्या कर रहा हूं? यहां पे टोटल सिस्टम का डायरेक्ट कर रहा हूं, सेपरेट पार्ट्स जरूरत नहीं है। ताकि क्या टाइम बचेगा, फटाफट होगा। तो टोटल सिस्टम का जब करेंगे वी विल ओनली कंसीडर एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है? इसका वेट है mg, इसका वेट है mg। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्सटर्नल कहां से हो गया। भाई साहब ये वेट कहां से आता है? नीचे जो हम लोगों का है ना, कि नीचे हम लोगों का फ्लैट का नीचे जो रहता है वो नहीं, नीचे बोल रहा हूं मैं अर्थ pulls them with these weights and earth is outside this system। ये सिस्टम के नीचे है अर्थ। that's why whatever force offered by earth is an external force। ये सब छोड़ के जो बाहर से कोई फोर्स दे रहा है that is external force। तो earth is pulling them with their weights, that's why weights are considered as external force। तो weight माने mg, समझ में आया? तो ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलो एक एक करके सीखते हैं। तो एक्सीलरेशन ए, वहां पे फॉर्मूला, यहाँ पे एप्लीकेशन, ये एग्जांपल कैसे होगा? हेवियर मास कौन है? 12 kg, तो mg। हेल्पिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स, ऑपोजिंग कौन है? हल्का वाला, 10g। डिवाइड बाय टोटल मासेस मूविंग, तो टोटल मास कितना मूव कर रहा है? 10 और 12 मिला के 22 kg। 10 प्लस 12, क्या यही आंसर है? यही आंसर है। 2g by 22, that means g by 11। ये आंसर है। फॉर्मूला, आंसर, फॉर्मूला नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 यहां पे लिख रहा हूं, बट कलर चेंज। फॉर्मूला नंबर 2 is how to find tension। Tension for single thread, रस्सी एक ही होनी चाहिए। अगर एक ब्लॉक का साथ दो रस्सियां है तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? तब फ्री बॉडी डायग्राम कर लेंगे। और ये सब क्या कर रहा हूं फिर? शॉर्टकट, डायरेक्ट, बिना फ्री बॉडी डायग्राम का बुक में जो सॉल्यूशन दिया होता है उसको अवॉइड करके डायरेक्ट एग्जाम हॉल और ये क्वेश्चन, योर ब्रेन एंड दिस ट्रेनिंग and the answer। No free body diagram। तो डायरेक्ट करेंगे कैसे? If you see that a block is connected to a single thread, like यहाँ पे है, ये ब्लॉक का साथ कितना थ्रेड है? एक ही तो है ये ब्लॉक का साथ कितना थ्रेड है? ओनली सिंगल, दिस वन। तो चलेगा, हाँ, ये केस में चलेगा ऐसा। तो क्या होगा बताओ तो? वो ये है टेंशन एट एनी थ्रेड। टेंशन शॉर्टकट बता रहा हूं, जो लिफ्ट के केस में किए थे, लिफ्ट क्या, अदरवाइज अगर नहीं भी किए हो तो ऐसा आइडिया है, m इंटू या तो g प्लस है नहीं तो g माइनस है। दिस आइडिया टेंशन का क्या आइडिया हुआ? m इंटू या तो g प्लस है नहीं तो g माइनस। ये g ये कौन है? g तो g है, mg का g। और a is the common acceleration that you have just found in case 1। यहां से a निकल जाएगा as we have found here, g by 11। अच्छा a निकल गया। फिर बोला कि भाई यहाँ पे टेंशन बता दो। यहाँ पे चलो करते हैं इसको। टेंशन बताओ इसका, किसका? ये 12 kg का साथ जो थ्रेड लगा हुआ है। बाय द वे एक चीज बता दूं, रिपीट करके बोल रहा हूं, टेंशन इन द सेम थ्रेड वुड बी सेम
भले वो इस साइड में हो, उस साइड में हो, कहीं पे भी हो, सेम थ्रेड पासेस ओवर द पुली, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, थ्रेड सेम टेंशन सेम। ओके, तो इधर ही टी निकालता हूं। अगर मैं इसका ले लूं तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखो, जस्ट इसको देखो, इसको मत देखो अभी, इसको देखो, क्यों, सिंगल थ्रेड, इसका साथ एक ही थ्रेड लगा है, टेंशन टी। ये फॉर्मूला, ये एप्लीकेशन, कैसे, एम, इसका एम कितना है, इसलिए मैं बोला कि इसको देखो, इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, टेंशन, इसका मास कितना है, 12। अब बताओ ये मास नीचे जा रहा है कि ऊपर, उसका ऊपर डिपेंड करेंगे प्लस होगा कि माइनस। इफ इट इज प्लस, देखो एक मैं बता रहा हूं, मान लो इसको मैं ऊपर वाला को प्लस लिखता हूं, तुम लोग भी इसको प्लस लिखो। अगर ये प्लस है तो ये अप जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये डाउन जाएगी। देखो, इजी टू रिमेंबर, इफ समथिंग इज अप माने मोर, मोर माने प्लस, और इफ समथिंग इज नीचे जा रहा है, नीचे कोई भी चीज जाता है, कम हो जाता है, दैट मींस माइनस, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। अप माने प्लस, डाउन और माइनस। अब बता दो 12 kg would be moving up की down if it is connected to 10 kg, 12 kg would be moving downwards, भारी है, Sir, down. down, so if 12 kg is moving down, then what formula should we apply here, m into g, प्लस है कि माइनस है, ये बता दो, इसका प्लस की माइनस, डाउन के लिए कौन सा, वेरी गुड, वेरी गुड, ये बता, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड अपना अप्लाइंग द वैल्यूज, g माइनस a का वैल्यू कितना, g का टर्म्स में g by 11, so it would be 12 into g minus g by 11, 1 minus 1 by 11, that means 10 by 11 g, है ना। So it is 120 by 11 into g. फटाफट चाहिए लगे, थ्री kg, 4 kg, 8 kg, अरे 8 kg इतना छोटा हो गया, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, 8 kg, ये 4 kg इतना बड़ा, फिर भी 4 kg छोटा सा, 3 kg, अरे सबको इरेज करो, कर लो, 3 4 8, चलो लास्टली ये पिक्चर है, what is the tension in this thread, that is the question, ये थ्रेड में टेंशन कितना है, फटाफट बोलो, कॉपी पेन में भी नहीं भी लगेगा, लग सकता है, पर मुझे लगता है कि बिना कॉपी पेन का भी कर सकते हो। What would be the tension in this thread? Step 1, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी you check whether it could have been done बिना कॉपी पेन। Acceleration of the system, heavier कौन है, इस साइड तो 7 हो गया, 3 plus 4, उस साइड 8 है, अरे ये हेवी है, ये हेवी है, because it is 8, तो वो नीचे जाएगी, तो helping force माइनस opposing force, जो oppose करे सबको माइनस, that is this and that, divided by total mass, टोटल में सबको जोड़ दो, इस साइड उस साइड, so this is g by 15, ये आया, that is 10 by 15, 5 से कैंसिल, 2 by 3 मीटर पर सेकंड, this is the common acceleration, ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या ऐसे कर सकते थे बिना पेन कॉपी का, हाँ कर सकते थे, इस साइड में 7 8, helping force minus opposing force, 8 minus 7 into g, 7 only g, divided by total mass 15, g by 15, बिना पेन कॉपी का कर सकते हैं, और क्या चाहिए, t, अरे t कैसे करेंगे बिना पेन कॉपी का, क्यों, मैं सिखाया नहीं था, is t the tension on a single thread, हाँ सिंगल थ्रेड है, समझ में नहीं आ रहा है, सिंगल थ्रेड डबल थ्रेड क्या है,
if I tell you that the mass 3 kg is connected to a double thread, मतलब नीचे इसका T है, मतलब एक थ्रेड है, ऊपर में और एक थ्रेड है which is different than this, ये अलग हो गया, ये थ्रेड अलग हो गया, so there would be two tensions, नीचे T और ऊपर में T डैश। तो 3 kg मास के लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा जो तुम लोगों को मैं शॉर्टकट दिया था। तो शॉर्टकट क्या दिया था वहां पे, ऐसे क्या लिख दिया था कि यू कुड हैव डिस्टिंग्विश्ड कि ये चलेगा नहीं चलेगा, सिंगल थ्रेड बोल के मैं लिखा था, सिंगल मतलब द मास शुड बी कनेक्टेड और अटैच्ड टू अ सिंगल थ्रेड। तो क्या 8 kg के लिए चलेगा वो फॉर्मूला? चलेगा, बिकॉज़ 8 kg इज आल्सो कनेक्टेड टू अ सिंगल थ्रेड। किसके लिए नहीं चलेगा? 3 kg डबल थ्रेड। कोई बात नहीं, इसका निकाल लिए यहां से, उसका निकाल लेंगे 8 kg से, तो दोनों ही टेंशन निकल जाएगा। यू डोंट रिक्वायर 3 kg, डोंट वरी। हम लोगों ने लेकिन ये बोला है टी, तो चलो टी निकालते हैं। तो इसको देखो, बाकी कुछ मत देखो, अभी टी टेंशन चाहिए तो M4, अब ये साइड ऊपर जाएगी बिकॉज दैट पर्ट इज कमिंग डाउनवर्ड, सो दिस पर्ट ऊपर जा रहा है, m इंटू जी प्लस, अरे सारे m इंटू जी प्लस ही आ रहा है। तो एनीवे g प्लस a माने कितना, g बाई 15, या तो 2/3 भी लिख सकते हो जैसे चाहो। चलिए 16/15 इंटू जी। अगर g का टर्म्स में आंसर देता है ऐसे करना, और अगर देखते हो नहीं वैल्यू पुट कर दिया है, पहले पुट द वैल्यू ऑफ g टू बी 10, तो ये आंसर है। देखो ये भी ऐसा, यू कुड हैव डन दिस बिना पेन कॉपी, अदरवाइज बुक में वो फ्री बॉडी डायग्राम, इतना इक्वेशन सॉल्व, फिर कहीं प्लस माइनस भूल हो गया, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना। अब देखो तो ये पार्ट का, ये एंगल 30 डिग्री है एंड अ मास 10 kg is placed on this, but this mass is connected by means of a thread which passes over a pulley। ये पुली ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मास जो है ये कर दो 20 kg, और ना ये राफ सरफेस है, राफ सरफेस माने देयर इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अभी नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, राफ सरफेस ऑफरिंग अ फ्रिक्शन ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स है, दैट मींस इट विल बी ऑफर्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिशन ऑफ 10 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नंबर 1, एक्सीलरेशन निकालो। चलो ना करते हैं, साथ में करते हैं, चलो फटाफट करते हैं, इसका बाद टॉपिक चेंज करेंगे। एक्सीलरेशन सिंपल है, हेल्पिंग फोर्स, कौन भारी है, देखो देखो मोशन किधर किधर पॉसिबल, मैं एरो दे रहा हूं, एक तो इधर जा सकता है, ये नीचे सीधा, और इसको टान के ऊपर उठाएगा, और ये बोलेगा नहीं मेरे साथ चल, मैं तो इंक्लाइन सरफेस पकड़ के नीचे जाऊंगा। अब कौन जीतेगा वो देखना पड़ेगा। कैसे? इफ द मास इज वर्टिकल, डायरेक्टली mg फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज 20 into g, दैट इज 200 न्यूटन। चलो g का वैल्यू 10 बैठा दे, 200 न्यूटन। लेकिन अगर इसका बस चले तो इसका नीचे फोर्स कितना होता है, अलोंग द इंक्लिनेशन वी नो दिस, mg sin थीटा होता है वो फॉर्मूला। द वेट, द कंपोनेंट ऑफ द वेट that drags the body along the inclination is given by mg sin theta, और वो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, mg कितना है, m10, g का वैल्यू बैठा रहा हूँ 10, sin थीटा, थीटा 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, ये 200 न्यूटन। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो ये ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा एंड दिस पार्ट वुड बी मूविंग अप, सो एक्सीलरेशन कुछ ऐसा दिखेगा। How much would be that acceleration? Can it be applied directly? जो फॉर्मूला सीखे थे, helping force minus opposing force by total mass? Yes. कैसे? चलो ना 200 helping, भारी वाला बोला था helping minus opposing, कौन रोकने का कोशिश कर रहा है 50 न्यूटन by total mass, total by कितना 10 और उसका 20, that is 30, हो गया।
इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक लाइन में, नो फ्री बॉडी डायग्राम। কত আসছে? How much is coming? Fiction. Oh हाँ, friction was given. Yes. Friction was given. तो बोलो, if friction is given, how to adjust that force? Friction. Is it helping force or opposing? Very good. So if friction is given 10, then we should consider friction as an opposing force. So subtract that from the helping force 200. So it would be how much? 200 minus 60. That means 140 by 30. 14 by 3 meter per second square. Acceleration निकल गया. Tension T. Can it be still found in this case? Yes. With that formula same. Yes. Single thread. ये तो single thread. Let it be T. तो T कितना हो जाएगा? 20 kg नीचे जा रहा है कि ऊपर? नीचे. तो 20 माने M into बोला था G प्लस है, नहीं तो G माइनस है. अरे ये तो नीचे जा रहा है, तो G माइनस से कर देते हैं. हाँ, एक बार मिला है, नीचे जा रहा है. G माइनस है. G माने 10 माइनस A. A means 14 by 3. So it is coming as 16 divided by 3 into 20. अब डिवाइड करके जो आएगा उतना न्यूटन. That is the tension in the thread. So this is how we do sums like this. ठीक है? Before we say goodbye to this, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड सम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड. ज्यादा स्टैंडर्ड में जाएंगे. लेट अस एक्सप्लोर फ्रिक्शन फर्स्ट. अभी नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड पुराना आईआईटी का सम है, देख लेते कैसा. दिस इज अ मास. मैं डायरेक्ट वो सम नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, लेकिन स्टाइल वही है. दिस इज अ मास. से कितना लोगे ये मास को? 40 केजी ले लो. 40 केजी, बाप रे. और यहां पे 60 केजी ले लो. ये क्या है? 60 केजी पर्सन, इसको उल्टा लटका के कोई कुछ कर रहा है. ये स्पोर्ट्स कर रहा है, स्पोर्ट्स. हाँ, वो बेटर टर्म है. दिस इज स्पोर्ट्स जहां पे उल्टा लटकना पड़ेगा. सो अ पर्सन को P लिख देता हूं. P is a person of mass 60 kg and this is a heavy block of mass 40 kg. This is smooth surface, no friction. अरे तब तो ये गिर ही जाएगा. नहीं, फर्स्ट क्या होगा देखो. The condition of the sum is like this. (40 kg mass is given a blow by a hammer. एक हैमर आके इसको धड़ाम से धक्का दिया ऐसे. दिस इज अ बॉल. टान के छोड़ दिए क्रेन से, और ये क्रेन आके इसको ऐसे करते करते धड़ाम से धक्का दिया. So blow by a hammer which impulse कितना लोगे? 12 meter per second initial speed to it. इतना जोर से धक्का दिया इसका ना, इधर इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो गया. इतना जोर का धक्का दिया. ठीक है. क्वेश्चन इज, ये जो P का पर्सन यहां से हैंग कर रहा था, स्पोर्ट्स का नियम जो था कि स्टार्टिंग पॉइंट P है उसका. फाइंड डिस्टेंस ऑफ द एथलीट बोलो या तो स्पोर्ट्स पर्सन बोलो. अच्छा छोड़ो, और P लिख दो.
distance of P from its initial position after 5 सेकेंड। ये जो इसको धक्का दिया, इसका 5 सेकंड बाद वो कहां पे जाएगा, पी पॉइंट किधर जाएगा? तो ऑप्शन 1 इतना अप, ऑप्शन 2 इतना अप, ऑप्शन 3 इतना डाउन, ऑप्शन 4 इतना डाउन। देयर विल बी 4 ऑप्शंस लाइक दिस। मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, आईआईटी में आया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन। ये बहुत क्लोज हो गया। Step 1. What would be the acceleration of the system? भाई एक्सीलरेशन, मोशन का डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन हुआ तो दैट इज एक्सीलरेशन। अब मोशन का ऑपोजिट में अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो दैट इज रिटार्डेशन। बाकी होगा उतना ही, कितना, जितना फॉर्मूला सीखे हैं। हेल्पिंग फोर्स 0, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आफ्टर द हैमर इसको हिट किया, उसका बाद हैमर अपना तरफ और ये ऑन इट्स ओन। हैमर इज नॉट गोइंग टू पुश इट आफ्टर द मोशन कमेंस्ड। मतलब एक बार धक्का देके छोड़ दिया, बस ये अब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन अब तो ठेलने वाला कोई नहीं है। सो इट विल बी स्लोइंग डाउन, ये धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। दैट मींस इट विल रिटर्न। कितना रिटार्डेशन? हेल्पिंग फोर्स तो 0 है, कोई इधर हेल्प नहीं कर रहा है, रादर रिटर्निंग फोर्स है, मतलब ऑपोजिंग फोर्स। कौन? वेट ऑफ दिस हैंगिंग पर्सन, ये इसको टान रहा है नीचे कि उधर मत जा। तो दैट वुड बी ऑपोजिंग फोर्स। ऑपोजिंग फोर्स वुड बी हाउ मच? 60 g mg divided by total mass, same 40 plus 60, so it would be minus 6 meter per second square. That is retardation. Otherwise देखो, कोई अगर ऐसे करता है जैसे A equals to helping force 60 g minus opposing force 0 divided by total mass 100, तो भी चलेगा, ये प्लस में आएगा। It will come in plus, that means 6। और प्लस में आए माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, if you understand हो जाएगा। बाकी ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, opposing force, why is it 0? opposing force 0 कहां से हो गया? Because the motion either would be like this or शुरू में मोशन was like this। चाहे इधर मोशन हो चाहे इधर। Why mg of 40 kg will not oppose this? Because नोटिस करके देखो, as far as the motion of 40 kg is concerned, पहले भी बोला था, फिर से बता रहा हूं, 40 kg मोशन किधर हो रहा है? x एक्सिस ना y एक्सिस। It is taking place along x axis, चाहे ये सामने जाए चाहे पीछे आए, taking place along x axis। पर इसका mg weight किधर होगा? 40g। y axis इसका mg weight will act on the table 40g, and table will take care of that by offering it a normal reaction n। इसलिए 40g will be balanced by other force n। यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। हाँ बोलो কি বলছো? স্মুথ সারফেস বলে? স্মুথ সারফেস বলে ফ্রিকশন নেই, তাই নরমাল ফোর্সটা এখানে কাজে লাগবে। হ্যাঁ, সেটা কাজে লাগছে না, সেটা ঠিক বলেছো। ফ্রিকশন থাকলে নরমাল ফোর্সটা কাজে লাগবে, মিউ এন করতাম আমরা ফ্রিকশনটা, ঠিক। আদারওয়াইজ দেখো, দ্য আইডিয়া ইজ कि this is why we are not considering this 40g, that is mg will be balanced by normal reaction n। that's why we are not considering this, so let them go। जाओ ऐसा हम लोग जाओ। that's why the opposing force is not present if during its motion along x axis, इधर या तो इधर,
there was a rough surface and in place of smooth surface, if it were a rough surface and there was friction, the friction oppose कर सकता था like the previous sum. But in this sum, as there is no friction, no opposing force is there. That's why opposing force is 0. So what about inertia? Inertia is what? Inertia is the tendency of keeping the body in its own position. এবার যখন এটাকে হিট করে দিয়েছো 12 মিটার পার সেকেন্ড স্পিড দিয়ে দিয়েছো, তাহলে এখন তো এর ইনার্শিয়াটা কোন দিকে আছে? এই দিকে, মোশনের দিকে ইনার্শিয়া। এবার ইনার্শিয়া অফ মোশন, কিন্তু এর উল্টো দিকে যদি ফোর্স দেয় এর ওয়েটটা দিয়ে, তাহলে তো ইনার্শিয়া জন্য ও চাইবে যে আমি মুভ করতেই থাকি, কিন্তু উল্টো দিকে যে এক্সটার্নাল ফোর্স চলে আসছে এর ওয়েটটা, সেই জন্য কি হবে যে এইটা ধীরে ধীরে স্লো ডাউন হয়ে যাবে, আর কিছু না। তো চলো লেট আস, acceleration বেরিয়ে গেছে তো এবার ডিসটেন্সটা ক্যালকুলেট করলে 12 আসবে 2 সেকেন্ড। so let us do this. So we understood that this 40 kg mass along with this person will be slowing down along negative x axis, এই দিকে যাবে আর স্লো ডাউন হয়ে যাবে। तो अगर स्लो डाउन होता है तो ये एक टाइम रुक भी जाएगी, 40 kg will stop once। तो कितना टाइम बाद ये स्टॉप करेगा? v equals to u plus at से देखते हैं, v0 u 12 a minus 6 into t, from this t equals 2 seconds। otherwise मैं तुम लोगों को बताया था कि मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन पर सेकंड उतना करके स्पीड चेंज होगा। तो इफ इट इज रिटार्डेशन ऑफ 6, दैट इज एवरी सेकंड 6 करके स्पीड डिक्रीज करेगा, तो 12 डिक्रीज करने में तो 2 ही सेकंड लगेंगे ना। अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर्मूला, 2 सेकंड लगा सो इट स्टॉप, तो इसका मोशन कुछ ऐसा हो गया, दिस केम टू दिस पोजीशन, यहां पे आ गया ये। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। अभी भी कितना बचा है? आउट ऑफ 5 सेकंड 3 सेकंड्स बचा है। बट ड्यूरिंग दिस 2 सेकंड्स ये आया कितना? हाउ मच हैज इट मूव्ड? हाउ मच? तो इज इट मूविंग विथ एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में s कैसे निकालते हैं? ut minus half at square, g ना a, because its acceleration is a। ut, u कितना था? Initial speed 12, and for how many seconds it has been moving? 2 half, acceleration was how much? 6, or retardation you can say, that was how much? 6 into t square, yeah, t square होगा, into t square, that would be how much? 2 square, 12 meter। so it has moved 12 meter towards the left side। 3 सेकंड में कैलकुलेट करले 27। हाँ, right, it would be 27। so this person has already moved 12 meter। अरे बचाओ, मुझे कौन उठा के लेके जा रहा है? ऐसे करके ये चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, ऐसे कौन उठा के लेके जा रहा है? so the person moved up to 12 meter upwards from the starting position, because this block also moved 12 meter। and now comes the case that this block temporarily has 0 speed, ये person का भी speed 0 हो गया, दोनों एक साथ ही जा रहा है ना, दोनों एक साथ जा रहा है, उसका स्पीड 0 हो गया। and now गलती का एहसास, घर वापसी, माने दिस ब्लॉक विल नाउ रिटर्न बैक। क्यों? क्योंकि स्पीड 0, ये जो 12 स्पीड लेके बहुत ऐसा करके निकला था कि देखो 12 स्पीड है, वो तो 0 हो गया, विथ टाइम फेड हो गया। then it will start moving this side due to the action of constant action of this weight। अब ये रिटर्न करेगा इस साइड में। अब फ्रेश करके सोचो कि रिटर्न करने के लिए उसका पास है कितना टाइम? 3 सेकंड्स, बिकॉज 2 सेकंड्स ऑलरेडी स्पेंट इन मूविंग बैकवर्ड, और 3 सेकंड में ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। इनिशियल स्पीड इसका अब 0 है, ऐसा सोच लो, इनिशियल स्पीड 0, रुक गया था। and now in coming 3 seconds it will be moving how much? s is equal to 0 माने ut 0 half a t square। a क्या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा भाई साहब। इसको अगर पीछे लेके जाओगे, रिटार्डेशन
इसको अगर सामने अलाउ करेंगे एक्सीलरेशन पर होगा तो वही वैल्यू बिकॉज masses आर नॉट चेंजिंग ओके तो हाउ मच इज दिस इज 327 yes yes is 27 तो ये ऊपर उठा 12 then it is coming back by 27 नीचे आ गया अब ये 27 और ड्रॉ नहीं करूंगा मैं इसको ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा ये 27 नीचे आ गया है सो नेट डिस्प्लेसमेंट वुड बी 12 ऊपर और नीचे 27 सो नेट डिस्प्लेसमेंट वुड बी delta x 27 minus 12 that means 15 meter very good answer and it was fast really very good